पास आज फिनटेक के एक्सपर्ट आए हैं मोहम्मद रजा साहब। उनकी एक कंपनी है स्विच, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। जीएम दिल के रिश्ता वो यही कह रहे हैं कि ये ना हमें पेमेंट, और कमेंट्स में सारे लोग स्विच की बात कर रहे हैं यार स्विच यू नीड टू गो। तो क्या मतलब आपने पे किया है या वो वाकई आपके कस्टमर है चुके, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है? यार लोग मोहब्बत तो करते हैं खैर यकीनन। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट, मतलब स्विच में क्या सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर है, सबको ऐड कर दिया है? Is that the only thing that Switch is doing? हमने तमाम पेमेंट ऑप्शंस को जो भी अवेलेबल है हमने किया। हम उसको ये कहते हैं कि यार हमने बहाना खत्म कर दिया है डिजिटल पेमेंट ना करने का। ठीक है। तो what's stopping you with the next big thing in Pakistan's biggest fintech company? अभी भी फोकस कैश ऑन डिलीवरी है एंड माय कंपटीशन इज कैश ऑन डिलीवरी। वेलकम टू एवरीडे पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम एपिसोड कर रहे हैं कि फिनटेक की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए। तो हमारे पास आज फिनटेक के एक्सपर्ट आए हैं मोहम्मद रजा साहब। उनकी एक कंपनी है स्विच, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। मोहम्मद रजा साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे जो लोग आपको नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम अफान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। So I am one of the founding members and chief growth officer of Switch. My journey has been a very interesting journey because I started my career with Citibank, then I moved towards GSM side with Telenor, stayed there for a good 8.5 years. Then I moved to Jazz where I was looking at mobile financial services and GSM. And after that, I got a chance to work with UBL where we were doing digital banking, merchant acquiring. So I got involved into a lot of digital payment side of things. And then I became part of Infobip, which is European unicorn. So we introduced WhatsApp business, SMS into Pakistani market and onboarded a lot of clients. Then I joined eOcean, which is another digital communication leader in Pakistan, into SMS, and we were launching WhatsApp and scaling it to different markets in Europe and North America. Then after that, I again got a chance to go back to digital payments via Paymob, which is an Egyptian fintech. So when Paymob came to Pakistan, I joined them and I was leading business, enterprise and account management over there. We did it for a year and a half, scaled it, and Paymob became a household name in Pakistan. And then luckily I got an opportunity to become a part of founding team of Switch, which is a merchant focused fintech. So what we do is we have got a retail app which is doing aggregation of bill payments, airtime, cash in, cash out, and we also have an online payment gateway which is letting businesses accept payments, but not only accept them, but we have built a utility that you can also disburse funds to people. Right. So this is in a nutshell what my career has been all about. All right. So I think आपने अभी काफ़ी फिनटेक के साथ काम कर लिया है, स्टार्टअप कम्युनिटी एज वेल। यू आर क्वाइट इन, काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, काफ़ी फाउंडर्स दे नो यू एज वेल। तो आजकल आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक, अभी क्लाइमेट कैसा चल रहा है विद लॉट ऑफ स्टार्टअप, फंडिंग ड्राई आउट हो गई है, फाउंडर्स का क्या रिएक्शन है? अगर आप किसी से मिले हैं, व्हाट्स द एनवायरनमेंट लाइक? So the opportunity is there. Of course, times have changed and they do change. I believe they change for a good reason, and this is no bad time to be a startup as well, because in this time you're getting more validation. तो आपको पता है कि अगर आपने कोई business build करना है ना, which is, और हमारा aim भी यही होना चाहिए कि going concern बने। एक business में आज शुरू करता हूँ, should last for generations. Aim हमारा ये होना चाहिए। तो ये जो क्रंच आया है इसकी वजह से वैलिडेशन आई डेटा की कि आपने अपना मॉडल देख के उसका रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करना है ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में चीज़ चलनी है। अब आप किसी वीसी के पास जाते हैं या किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, सो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आपका प्रोडक्ट, आपका रोड मैप प्रॉपर रेडी होना चाहिए। हमने ये, आई एम नॉट सेइंग कि ये पहले नहीं होता था, बट पहले क्योंकि एक फ्लो चल रहा था तो थिंग्स वर अ बिट इजियर देन दे आर राइट नाउ। बट स्टिल जो अच्छे बिजनेस हैं वो इस वक्त ग्रो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे स्विच भी ग्रो कर रहा है बिकॉज हमारा एक कैश फ्लो पॉजिटिव मॉडल है। हमने जो बिजनेस बिल्ड किया है वो बिल्ड ही इसलिए किया है कि हमें वीसी की सपोर्ट मिले इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अस। ठीक है। सो मैं इस सिचुएशन को ऐसे देखता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स, फॉर ऑल स्टार्टअप्स टू हैव अ वैलिडेटेड स्टार्टअप आइडिया so that you can scale it. And when someone joins hand with you as an investor, as an advisor, you can take it to the next level. True.
सो ये आपने बड़ा इंसाइटिंग बात की है काफ़ी, क्योंकि आजकल काफ़ी यूनिट इकोनॉमिक्स की काफ़ी बातें होती थी, लोग कहते थे यूनिट इकोनॉमिक्स का फोकस नहीं है, गेट एज मेनी कस्टमर्स एज यू वांट, टॉप लाइन पे फोकस है, बॉटम लाइन पे सोचना भी के बारे में भी है ना, हम सोचते भी नहीं है। तो आई थिंक वो कल्चर चेंज हुआ है। आई हैव टॉक्ड विद लॉट ऑफ वीसीज एंड उनका भी यही कल्चर था कि डेफिनेटली अब हमारा भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, ये कि हर कोई छक्का माइंडसेट वाले के साथ जाएगा कि यार ये तो अब लगने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होगा। बट लेट्स टॉक अबाउट स्विच के हवाले से बहुत सारे, तो ये आपने स्विच का थोड़ा बता दिया इंट्रोडक्शन, मगर पर्पस क्या था, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, आप क्यों फाउंडिंग टीम में बनना है स्विच के? अच्छा, हमारे पास बिकॉज द अदर को-फाउंडर्स दैट आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ रिटेल, so they know inside out about what the retail is, how to sell airtime, how to sell bill payments. ठीक है. Why we joined hands or why we got into a discussion is because we wanted to consolidate it. We wanted a solution जो कि retail पे भी चले, ठीक है, but ऐसा ना हो कि एक ही segment का होके रह जाए कि retailer ने cash in cash out करना है, because online retailers भी तो हैं और उनकी भी वही needs हैं, उनको भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है, उनको भी पेमेंट्स देनी है, उनके अपने यूज केसेस हैं, वो उसके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं। सो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऑनलाइन के लिए भी सोल्यूशन बनाए, रिटेल तो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज रिटेल इज अ लार्जर पाए, उससे आपको डायरेक्ट आप B2C में चले जाते हैं, आप फैसिलिटेशन दे रहे होते हैं, ये B2B है, बट इसका कनेक्शन इस तरह बनता है कि हमारे पास जैसे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है ना, जस्ट टू गिव एन आइडिया, हमारा एक सोल्यूशन है जो कि OTC पेमेंट्स का है for corporates. So if someone wants to accept payments from COD customers, so they can work with us and we can enable them to collect OTC payments. अच्छा, कि कोई 50% 30% आप पेमेंट ले लें उन कस्टमर से जो COD करते हैं बट आपको रिस्की लगते हैं. So in order to minimize risk, you can take the OTC payment from our app, जो कि स्विच की रिटेल ऐप है, and then you can dispatch the order so that at least you know किसी ने पेमेंट की है तो सोच समझ के की होगी. इट्स नॉट एन इम्पल्सिव थिंग कि यार ऑर्डर आएगा घर पे तो रिटर्न कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है. इस हिसाब से हमने वी गॉट टुगेदर, वी थॉट कि इस पे पोटेंशियल माशाल्लाह है. इफ वी एग्रीगेट द सर्विसेज व्हिच वी हैव डन, हमने बड़ा यूनिक सोल्यूशन बनाया जिसमें तमाम पेमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, एंड विद new payment options that are coming like Rast QR and Rast Request to Pay, we are also integrating that. So inshallah very soon, very soon you will see us capturing more market with this Rast Request to Pay and Request QR as well. Right. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली अभी लिंक्डइन पे ही देख रहा था, आज की बात है कि GM दिल के रिश्ता वो यही कह रहे हैं कि ना हमें पेमेंट, और कमेंट्स में सारे लोग स्विच की बात कर रहे हैं कि यार स्विच यू नीड टू गो. तो क्या मतलब आपने पे किया है या वो वाकई आपके कस्टमर रह चुके, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है? यार लोग मोहब्बत तो करते हैं खैर यकीनन, ऑफ कोर्स वो थोड़ा फ्लैटरिंग भी हो जाता है कि सारे कुछ हो रहा है भाई, बट हमने इसका फोकस स्पेशली ये रखा था बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे. सो अगर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर. हमें ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट होना है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट लिंक्डइन पे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जस्ट लाइक यू मेंशन्ड द पोस्ट वेयर स्विच वाज टैग्ड. तो हम वहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हम हर तरह से एक्सपीरियंस दें कस्टमर को. मेरा पहला इंप्रेशन क्या है, हाउ क्विकली आई रिस्पॉन्ड टू यू. इफ आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ लीड क्विकली, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि जब आपका कोई इशू कोई क्वेरी होगी एज अ कस्टमर तो फिर भी आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा. सो इट्स एन इम्प्रेशन गेम एज वेल. इसको हम इंश्योर करते हैं, और जो भी हमने मर्चेंट्स अभी तक ऑनबोर्ड किए हैं, वी ट्राई कि उनके साथ हम साइनिंग्स भी करते हैं, बहुत से उनके साथ नहीं भी कर पाते, बट वी मीट देम. ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और जितना आप लोगों से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू, I meet other people, I learn something new. It helps us in validating the idea, coming up with new solutions, new products. So हम इस चीज़ को अपने अंदर अपने डेटा सेट में बिल्ड करना चाहते हैं, उसी की बेसिस के ऊपर हम नए सॉल्यूशंस भी देना चाहते हैं. तो मुझे ये पूछना था कि क्योंकि मैंने उसके अंदर काफ़ी और भी ऑप्शन, कुछ लोगों ने और भी ऑप्शंस बताए हुए थे, तो मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट, मतलब स्विच में क्या सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर है, सबको ऐड कर दिया है? Is that the only thing that Switch is doing? मतलब क्या सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया है इन वन गो, तो अब आपको और किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? Is that एक तो बहुत अच्छी बात है. आप मतलब यकीनन मुझे पता चल रहा है कि उस कमेंट से उस फीडबैक से आपके बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे और लोगों के लिए हुई होगी.
और हम अपनी मार्केटिंग टीम से अगर पता करेंगे तो उनके पास आई एम श्योर और डीएम्स भी आए हुए होंगे पॉसिबल लीड्स के. सो एक तो यही है कि हमने तमाम पेमेंट ऑप्शंस को जो भी अवेलेबल है हमने किया. हम उसको ये कहते हैं कि यार हमने बहाना खत्म कर दिया है डिजिटल पेमेंट ना करने का. कि अगर आप सीमलेस एक्सपीरियंस चाहते हैं, सीमलेस एक्सपीरियंस से मुराद है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कार्ड्स हो, अकाउंट्स हो, वॉलेट्स हो, पेमेंट कर दें. बट फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा कस्टमर हूँ जो कि कहता हूँ कि यार मैं अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वेबसाइट पे डालने की. सो हमारा एक और सोल्यूशन है जो कि वन बिल का सोल्यूशन है. उसमें हम ये कहते हैं कि आप वाउचर जनरेट करें और आप अपनी बैंकिंग ऐप पे जाएं, जो भी बैंकिंग ऐप आप यूज करते हो उसमें वाउचर डालें. आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स इज ऑटोमेटेड. सो ये वो कस्टमर है जो अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है, मगर आप उसको छोड़ नहीं सकते. वरना क्या ऑप्शन है, आप उसको सीओडी पे लेके जाएं, आपसे कहें आप वहां से पेमेंट कर दें, बताएं उसको, एजुकेट करें. क्योंकि फॉर अ मर्चेंट इज अट्रैक्टिव. पेमेंट आ जाना इज अ कंफर्म्ड ऑर्डर. अगर पेमेंट नहीं आ रही ना, वो सीओडी है, तो इट्स अ लीड ओनली विच यू डू नॉट नो, बिकॉज आपका स्टॉक ब्लॉक होता है, आपका टाइम लगता है. 7 दिन बाद 5 दिन बाद जब डिलीवर होगा और पेमेंट हो गई, उसकी भी वैलिडेशन आने में आपको टाइम लगेगा. क्योंकि यकीनन लॉजिस्टिक कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, उनके अपने कम्युनिकेशन के यकीनन थोड़े चैलेंजेस होंगे जो वो कम्युनिकेट करते हैं. सो हम इस तरह से ऑप्शंस भी करते हैं. और इसके अलावा जैसे हमने बात की थी, स्विच की रिटेल ऐप है. राइट नाउ वी आर ऑन 4000 प्लस रिटेलर्स. सो हम आपको एज अ बिजनेस अपनी तमाम रिटेल आउटलेट्स पे प्रेजेंट भी कर देंगे. तो अगर आपको फिर भी कोई सीओडी का ऑर्डर आता है, आप उसको वैलिडेट ऐसे कर सकते हैं कि उससे बोलेंगे यार ये नियरेस्ट रिटेलर है, इनमें से किसी के पास भी चले जाओ, वहां पे पेमेंट कर दो. कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल अफान क्लोथिंग को पेमेंट कर दो. जैसे ही वो पेमेंट होगी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पोर्टल पे रियल टाइम. ठीक है. एंड देन यू कैन डिस्पैच द ऑर्डर. सो आपको कंफर्मेशन मिलती फ्रॉम लीड टू कंफर्म्ड ऑर्डर. ये आपके साथ होता है. ये हमने बिल्ड किया है. और बाकी जो रिटेल पे हमारा सोल्यूशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गोइंग प्लेसेस माशाल्लाह. उसमें हम एयर टाइम की एग्रीगेशन, हम एयर टाइम में से होता है क्या, लोगों को थोड़ा सा ये भी बता देना कि जिनको नहीं पता एयर टाइम भी क्या होता है. ये जैसे मोबाइल टॉपअप हम करते हैं, टेलीनॉर, जैज, जोंग, यूफोन, इनका मोबाइल टॉपअप होता है. आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं, अभी उसका चैलेंज ये है कि उसके पास 4 फोन होते हैं, आपने देखा होगा. अगर वो मैं फॉर एग्जांपल टेलीनॉर का कस्टमर हूँ या जैज का हूँ, तो वो टेलीनॉर में अगर उसके पास बैलेंस होगा, लिक्विडिटी, तो वो लोड कर सकता है. नहीं तो फिर उसको या तो बैलेंस लेना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा. इट्स अ लॉस सेल. अगर आपके पास कोई आ गया, आप उसको जाने तो नहीं देना चाहते. सो हमारी एक ऐप है, उसमें लिक्विडिटी शेयर्ड है. फॉर एग्जाम्पल 100,000 पड़े, उसमें से टेलीनॉर का कस्टमर आता है, वो भी यूज कर सकता है. जैज का आता है, वो भी कर सकता है. जोंग का आता है, वो भी कर सकता है. यूफोन आए, वो भी कर ले. सो ये एग्रीगेशन है. फिर बिल पेमेंट्स, आप नॉर्मल जो किराना शॉप्स होती हैं, सब होती हैं, आप वहाँ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं. पीपल लाइक टू विजिट देम प्लेसेस एज वेल. सो वहाँ पे आप जाके बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं. आपको कहीं फंड्स भेजने हैं या फंड्स मंगवाने हैं, वो कर सकते हैं. एंड इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू सॉल्यूशंस इनटू इट. सो अल्हम्दुलिल्लाह हम वैलिडेशन उसकी करते जा रहे हैं. हमें और पार्टनर्स मिलते जा रहे हैं, द वंस हु वांट टू पार्टनर अप विद अस, बिकॉज वी आर वेरी क्विक in terms of GTM. That's where we take pride and a lot of effort goes into it. जो हमारी support functions हैं वो day in day out फोकस. हम ये चाहते हैं कि कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहे इंशाल्लाह. तो अब जब अब आपकी कंपनी की काफ़ी सारी बात हो गई है, हमने डिफरेंशिएशन भी बात कर ली है, तो अब चैलेंजेस क्या है, मतलब व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान्स बिगेस्ट फिनटेक कंपनी? No stopping us, yes, because it's a journey. So we understand कि हमारा 5 year का plan क्या है, 10 year का plan क्या है, ठीक है, where we want to go. What we have done is for the past 15 months हमने अपनी रिटेल के ऊपर, हमारे रिटेल ऐप को 15 months हो गए माशाल्लाह. अच्छा. For the past 5.5-6 months हमने ऑनलाइन पेमेंट गेट पे अपना लॉन्च किया है. सो माशाल्लाह रिटेल चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट गेट पे लॉन्च. अब नाउ वी आर एडिंग मोर सॉल्यूशंस. वी वांट टू इनेबल द मर्चेंट्स क्विकली. फॉर एग्जाम्पल एक मर्चेंट है जिसने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं ऑनलाइन होना चाह रहा हूँ, पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. अब मैं उसको महीने इंतज़ार नहीं करवा सकता. सो मेरा KYC का जो प्रोसेस है वो डिजिटाइज हो, मेरा जो प्लग इन है वो रेडी हो. तो अभी हम प्लग इन्स हम अपने देते हैं शॉपिफाई के और वर्डप्रेस के. हमारे APIs हैं जो कि एप्स के ऊपर अट्रैक्टिव है, ये हम कर रहे हैं. इसके अलावा हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं.
अभी भी हमारी पार्टनरशिप्स की डिस्कशंस और क्लोजिंग्स चल रही हैं. हम प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, बिकॉज वी नो कि ये इकोसिस्टम है, इसमें हर किसी के एक्सपर्टीज हैं. I cannot go to each one of them. They cannot go to everyone as well. So it's the partnership. और उस पार्टनरशिप से ये भी होता है कि आपको बेहतर सोल्यूशन भी मिल जाता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, प्रोडक्ट अपने हिसाब से सोच रही है, एक तीसरा बंदा आता है, वो बोलता है यार मार्केट में इस चीज़ की नीड है, फिर आप असेसमेंट करते हैं, आप देखते हैं अगर बिजनेस केस बन रहा है तो देन यू गो अहेड विद इट. सो हम ये चीज़ें कर रहे हैं. इसी तरह से हम समझते हैं कि इसको स्केल भी किया जाएगा. और पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है माशाल्लाह, 250 मिलियन मर्चेंट्स आर कमिंग ऑन बोर्ड एवरी क्वार्टर. सो हमें अगर स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी हम देखें, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के मर्चेंट भी 600-700 वेबसाइट्स विच आर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स. जो ऑन बोर्ड हो रहे हैं या ऑनलाइन आ रहे हैं वो तो अलग है, ये तो वो हैं जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो नंबर बहुत बड़ा है अभी, जिसको हम पाकिस्तान में भी अगर इसको करें तो हमें 3-4 साल चाहिए सही से इसको स्केल करने के लिए. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव एम्बिशन टू गो ग्लोबल एज वेल, टेक इट country after country inshallah, and then you will see. Right. We aim to make it a unicorn inshallah. चलो inshallah, I hope you do, because आपकी टीम काफ़ी मतलब I really respect your team and your team members कि जिन्होंने जितनी 2 महीनों में या 2 सालों में काफ़ी कुछ कर लिया है यार, और माशाल्लाह. तो लेट्स मूव ऑन विद अभी जो करंट हमारे जो फाउंडर्स है जो स्टार्टअप क्रंच में अभी फंसे हुए, इनके लिए अगर आप कोई एडवाइस दे दे कि यार अभी वो क्या करे, क्या चीज़ फोकस करे अगर वो स्टार्टअप अपना करना चाह रहे हैं. ठीक है, मैं अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना उससे मैं कुछ चीज़ें रिलेट भी कर सकता हूँ. अभी मैं बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर से मिला भी, मुझे ऐसा लगा कि वो जो वैलिडेशन वाला सीन है ना, पीपल आर वेटिंग कि समबडी विल गिव मी फंडिंग, somebody will give me a push and it will happen. It does not happen like that. You need to have conviction. Not only conviction तो हो गया, आपने आइडिया दिया, बट एक वैलिडेशन. अगर मुझे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने कर ली, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बना ली, बट मुझे वेबसाइट तो बनानी है. हाँ. मैं वेबसाइट नहीं बनाना चाहता, कोई बात नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं. फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप से कर सकता हूँ, मैं कुछ तो करूँ. मुझे कार पूलिंग कर सोल्यूशन देना है, मुझे ई कॉमर्स का सोल्यूशन देना है, मुझे कोई और टॉपअप का सोल्यूशन देना है, कुछ भी देना है, क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, मैं उसको कुछ आइटम्स बनाऊँ, कुछ लोगों को दूँ, ट्राई टू सेल इट समवेयर. कोई डेटा सेट तो आए. मुझे लग रहा है कि मेरा फॉर एग्जांपल स्विच जो है, मुझे लगता है कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, बट वो वैलिडेशन कैसे आएगी? जब तक मर्चेंट्स नहीं ऑन बोर्ड आएंगे, जब तक वो यूज़ नहीं करेंगे. क्योंकि ये जो भी चीज़ हम बना लें, इसका यूजेज होता है, इस पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको इसके चैलेंजेस भी नजर आते हैं कि हाँ. आपको फिक्स क्या करना है. बिल्कुल. सो मेरी सबसे पहली एडवाइस तो यही होगी, क्योंकि ये बहुत गट्स का काम है. आप यंग एज में अगर स्टार्टअप फाउंडर बन रहे हैं, क्योंकि अब आई एम श्योर लोग बन रहे होंगे, हमने तो बहुत अरसे बाद ये फ्लेवर लिया है कि शुरू करें. हाँ, स्टार्ट करें. जो भी चीज़ है आपको उसको स्टार्ट करके उसमें देखें कितनी चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज इट्स अ जर्नी. कुछ चीज़ें सही होंगी, थोड़ी बहुत गलत भी होंगी, डिसहार्ड होएंगे, तो फिर क्या चले. आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि क्या चीज़ें नहीं करनी है. सो फिर जो चीज़ें करनी है, जो चल रही है, उसके ऊपर फोकस करें, उसको आगे लेके चलें और लोगों से मिलें. लोग ओपन हैं अपने आइडिया शेयर करने के लिए, लोगों को अच्छा लगता है. कोई ऐसा, मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला फाउंडर या कोई अच्छी प्रोफाइल के जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपनी चीज ना शेयर करना चाहें. अच्छा, बिल्कुल. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर ऑलवेज ओपन. समहाउ पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच आउट टू देम. दे थिंक कि वो कुछ नहीं बताएंगे. वो सब बताने को तैयार है, क्योंकि वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जितना हम बता दें, एब्जॉर्ब सामने वाले बंदे ने उतना ही करना है जितना वो करना चाहता है. बिल्कुल. तो मैं पूरा मॉडल भी आपको खोल के बता दूं ना किसी को, वो हो सकता है उस मॉडल को समझे कि यार ये तो काम की चीज़ नहीं है, मैं अपनी चीज़ करूँगा. सो बताने में कोई हर्ज नहीं है. पीपल आर विलिंग टू शेयर. और आप सामने वाला जो है वो भी रीच आउट करे, पूछे. हो सकता है आप 4 लोगों को रीच आउट करें, 2 लोग जवाब दें, 2 ना दें, तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन से 2 लोग हैं जो देते हैं जवाब. उन पे फोकस करें. जो नहीं है कोई बात नहीं, वो बिजी भी होंगे अपने, हर किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई इतना ओपन नहीं है. यू हैव टू पुट एन एफर्ट. मुझे हमारे एक बॉस है, वो कहते थे, मैं लाइन हर जगह कोट भी करता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है ये, कि
the key to successful execution is follow up. अच्छा. So you'll have to keep on engaging with people. True. There will be a time they will understand your value. Not just bombarding someone with a message does not help. You have to create a difference. Right. और हमने ये स्टोरीज देखी हैं, बहुत सारी लोगों ने लिंक्डइन पे भी शेयर की हैं यार. 1000 एप्लीकेशंस थी, उनमें से मैंने ये 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया because they were different. They did an effort and your effort is always recognized. वो तो देख रहा है ना. बिल्कुल. अगर नियत और कोशिश के साथ काम करें बस होगा, और आप कोशिश करें और डेफिनेटली होगा. बिफोर वी एंड, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसके लिए मैं यहाँ आज बैठा हूँ वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, और जो कितनी ज़रूरी है आपके जैसे बिजनेस और बहुत सारे और डिजिटल बिजनेसेस के बारे में, वो कितना इम्पोर्टेंट है. अब उसके लिए हवाले से अब आपको कोई इंसाइट हो कि आप क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर टचिंग ऑन टू दिस. इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू मी. देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूँ. अगर अपने बिजनेस से रिलेट करूँ मैं, फिर हम ओवरऑल की भी बात कर लेंगे. कि एक वेबसाइट जब ऑनबोर्ड होती है या ऑनलाइन आती है, या अगर आप कोई सोशल सेलिंग भी कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखते हैं कि सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, तो मैं ये चाहता हूं कि हर कंज्यूमर को ये पता हो कि ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर इज अ रिस्क. अच्छा. बिकॉज वो वेबसाइट ऑनबोर्ड हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, बट उसी किसी और ने केवाईसी नहीं की हुई. केवाईसी मुराद है कोई मिला नहीं, किसी ने उसके बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, उसका बिजनेस केस नहीं पूछा, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो, क्या डिलीवरी टाइम है तुम्हारी, तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी, तुम्हारी शिपिंग पॉलिसी, तुम्हारी रिफंड पॉलिसी है या नहीं है. इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट्स 5 to 7% हो रही हैं. अभी भी फोकस कैश ऑन डिलीवरी है, एंड माई कॉम्पिटिशन इज कैश ऑन डिलीवरी. So I want people to know, I hope whoever listens to it ask their website owners कि यार आप अपने पास डिजिटल पेमेंट्स इनेबल करें. उससे एक तो ये होगा कि केवाईसी पता चल जाएगा. एंड देन ऑल्सो देयर इज समथिंग दैट पीपल डोंट नो इज व्हेन यू मेक अ कार्ड पेमेंट ऑनलाइन, you've got 90 to 120 days for chargeback. मैंने एक प्रोडक्ट, लोगों को क्या डर था पहले, वो ये था कि अगर हमने कार्ड से पेमेंट कर दी, हमारी पेमेंट तो डिडक्ट हो गई. प्रोडक्ट अगर फॉल्टी आ गई तो अब हम क्या करेंगे. बिल्कुल. तो हमारे पास तो कोई एवेन्यू नहीं. ये आपको जानना ज़रूरी है. इसके ऊपर हम सबको मिलके मेरे ख्याल में नॉलेज शेयरिंग की ज़रूरत है कि अगर मैंने कार्ड से पेमेंट कर दी, प्रोडक्ट फॉल्टी आया, नहीं आया, या एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं आया, कोई मसला नहीं. यू कैन क्लेम अ चार्जबैक फ्रॉम योर बैंक. सो योर बैंक विल डू ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस. आप जिस बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा पेमेंट गेटवे से, जैसे हम हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे मर्चेंट से जिसका बिजनेस था, और ये एमिकेबली रिजॉल्व होगा. या तो आपको आपकी पसंद की प्रोडक्ट मिलेगी, या आप उससे अग्री हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स होंगे. अदरवाइज वो पेमेंट आपके पास वापस आती है. अच्छा. सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आई फील मोर कॉन्फिडेंट. ऑफ कोर्स आई नो, बट व्हेन आई टेल पीपल, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स. यार ठीक है, हमें 90 days तो है ना, हम कर लेंगे, अमाउंट अपना रिकूप भी कर लेंगे. एंड फॉर बिजनेस इट बिकम्स अट्रैक्टिव, बिकॉज उसको पता है कि अगर किसी ने डिजिटल पेमेंट की है, लेजिटिमेट रिसोर्स है भाई. रजा ऑर्डर कर रहा है, डिजिटल पेमेंट भी कर रहा है, इसका मतलब है इनको तो प्रायोरिटी डिलीवरी दें आप. सो इस तरह से एजुकेशन है. और फाइनेंशियल लिटरेसी मुझे लगता है कि इवेंट्स में तो होती है बात, मेन स्ट्रीम पे नहीं होती बात. बिल्कुल. और दूसरा, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे चैनल हैं जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फॉर दैट मैटर. आप छोटी छोटी वीडियोस, मुझे भी, मैं समझता हूँ उसके ऊपर डालनी चाहिए, आपने भी डालनी चाहिए, जिन जिन की अंडरस्टैंडिंग है सब डालें. हम जितनी इसके बारे में बात करेंगे, लोग उतने यूज केसेस भी बिल्ड करेंगे. क्योंकि लोग तो बड़े अंडरस्टैंडिंग भी हैं, बड़े क्रिएटिव भी हैं. सो दे कम अप विद गुड आइडियाज कि यार अच्छा ठीक है, ये पेमेंट्स ऐसे हो रही हैं तो उसका ये फ़ायदा है, डिजिटल पेमेंट्स हो रही है तो उसका ये एडवांटेज है. और फाइनेंशियल लिटरेसी आना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पता तो चले कि हमारा मनी इन सर्कुलेशन जो है वो यूज़ कहाँ हो रहा है. अब तो आपने देखा होगा डिजिटल बैंकिंग ऐप्स पे आपको ऑप्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप फंड्स किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आर यू ट्रांसफरिंग टू योर ओन अकाउंट, यू आर ट्रांसफरिंग इट टू फैमिली, यू आर ट्रांसफरिंग इट टू फॉर समबडी वेजेस. मतलब आपको पता चल गया कि यार आपके घर में कोई मेड या ड्राइवर है जिसकी आप सैलरी कर रहे हैं. सो वो लॉग्स बढ़ रहे हैं. वो लॉग से पता चलेगा कि रजा की या अफान की
स्पेंड है कहाँ पे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स आएंगे। वो भी हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि डिजिटल बैंक्स जो हैं वो हमें इस हिसाब से कस्टम सॉल्यूशंस देंगे। और दूसरा ये कि ओवरऑल इकोनॉमी का साइज भी तो पता चले। हाँ, अभी तो हम गैसिंग पे हैं ट्रू, कि हमारी एस्टिमेट कर रहे नीड कितनी है, वो इट्स अ गैस। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत इंफॉर्मेशन होगी, वो भी मगर बेस्ड ऑन वैलिड अजम्पशंस ही करेंगे ना। हाँ, डेटा तो डेटा है, तो उसमें राइट या रॉन्ग का तो कोई सीन ही नहीं है, या अप्रोक्सीमेशन नहीं है, वो तो एग्जैक्टली आपको वैल्यू बताता है कि नीड कितनी है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमें ज़्यादा पुश करें, ज़्यादा बात करें, जितना करेंगे उतनी वैलिडेशन आएगी। एंड वी हैव सीन डिजिटल पेमेंट्स ग्रो इन पाकिस्तान, स्पेशली विद रास जो है स्टेट बैंक का। इट्स एन अमेजिंग सोल्यूशन, वी आर रियली एक्साइटेड, क्योंकि इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। वंस यू मेक द पेमेंट यू गेट द फंड्स राइट अवे। एग्जैक्टली, so that's something we are really focusing on, inshallah you will see। हम इसके ऊपर मार्केटिंग कोलैटरल्स भी देंगे, वीडियोस भी करेंगे, स्निपेट्स भी करेंगे। तो हमारी मार्केटिंग टीम जो है इज वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह वी आर होपफुल के इंशाल्लाह हमारे साथ काम करे। यस बट यू नो मतलब अच्छा, बिफोर वी एंड हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। फिनटेक, स्विच, मैं अगला स्विच बोलने वाला था। let's just say payments, digital only, ठीक है। regulator, very forward looking, ठीक है। financial literacy, needs to be worked on, IB today, very good platform। ओके देन मोहम्मद रज़ा साहब, आपको मुझे बहुत सीखने को मिला है, एंड आई होप ऑल दोस्त जो आपको देख रहे हैं उनको भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मुझे बहुत मिला है। मिलते हैं अगले एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।